Dear students, today we are going to learn Module 1 Atomic and Molecular Structure, Lecture 1 Chemical Bonding, and I am your teacher Dr. Manisha Shukla from BVD ITM Lucknow. So, for the very first lecture, what all are we going to study today? Chemical bonding, valence bond theory. We are going to take up drawbacks of valence bond theory also, molecular orbital theory, postulates of molecular orbital theory. Then we are going to know a little about bonding MOs and anti-bonding MOs. And we are also going to take up filling up of MOs, how do we fill up the MOs and how do we draw the molecular orbital diagram. So, this is what we are going to take up today in our lecture 1. So, first of all, let us discuss what is a chemical bond and how many types of chemical bonds exist. In general, a chemical bond is a lasting attraction between atoms, ions or molecules that enable the formation of a chemical compound. Normally, during bond formation, the sharing of electron take place by overlapping of orbitals, resulting in decrease of energy of the atoms forming a bond. So, when this sharing of electron takes place and the bond formation occurs, then how many types of bonds do we generally know about? Now, a bond which results from the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions is called an ionic bond. And you have been studying ionic bonds for quite some time. Even during your school days, you studied a lot about the ionic bonds. So, what actually used to happen in the ionic bonds, if you remember, children? Suppose we talk of NaCl, a very popular molecule you have been studying for quite some time. Sodium, you know, has an electron in the outermost s orbital, which can easily be lost, forming an Na plus. And chlorine, you know, has 7 electrons in its outermost orbital, and therefore it needs an extra electron to complete its octet. So, an electron lost by sodium and an electron gained by chlorine, sodium becomes positive, chlorine becomes negative, and hence the two oppositely charged, atoms come close together and form a molecule, and this is what happens in ionic bonding. When we talk of the second type of bonding, and that is covalent bonding. So, what actually happens in covalent bonding is that neither of the atom is in a position to completely lose an electron or completely, of course, gaining an electron is required. So, what they do is that they share the electrons, and the shared pair of electron revolves around atom A as well as atom B, and this kind of a bonding which takes place due to sharing of electrons is known as covalent bonding. Now, the third type of bonding which you have already studied, and we are just taking a recap of that, is the coordinate bonding. Now, coordinate bonding क्या होती है? यहाँ पर जो pair of electron होता है वो एक single particular atom को belong करता है, लेकिन ये दूसरे एटम के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है ताकि उसकी भी रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट की जो उसकी नीड है वो पूरी हो सके. तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार की बॉन्डिंग्स को पहले ही पढ़ा था. अब बहुत सारी थेरीज के माध्यम से इन बॉन्डिंग्स को एक्सप्लेन किया गया था. देयर वर n number of theories which were proposed to explain the process of bonding. So, out of the very many, the most popular one that came to be known was the valence bond theory, जिसको हम popularly VBT बोलते हैं.
हिटलर एंड लंदन ने इसे प्रपोज किया था। और इस थ्योरी में मेनली जो मेन इसके पोस्टुलेट्स थे, उनके आधार पर एटम्स अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। एटम ए, एटम बी दोनों अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं इस माध्यम से, तो यहां पर नॉर्मली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ए एंड बी एटम में प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों आपस में ओवरलैप करती हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एरिया बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस overlapping, and thereby increasing the stability and resulting in formation of a bond or a molecule. Now, the presence of many unpaired electrons in the valence shell of an atom enables it to form multiple bonds, like double bond and triple bond may also be formed in this manner. Now, covalent chemical bonds are directional and are also parallel to the region corresponding to the atomic orbitals that are overlapping. So, according to the valence bond theory, there were so many proposals given, and these proposals, of course, at that point of time were found to be absolutely correct and right. But later on, as the time passed by, there were n number of problems that arose. One of the major problem that we have studied and we know about, जिनको हम drawbacks या limitations of VBT के अंडर में जानते हैं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कई प्रकार के अजम्पशंस की बात की गई थी। उसके अलावा इट डज नॉट गिव द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। फॉर एग्जांपल, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग VBT, एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर इशू, क्योंकि VBT के आधार पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जिसमें कुल मिलाकर के 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप हो जाना चाहिए था। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, यानी कि उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर होने की संभावना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो पैरामैग्नेटिक होता है और इस कॉन्सेप्ट को VBT में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था। अब मॉलिक्यूल्स के पॉलीसेंट्रिक होने की बात भी VBT में बिल्कुल डिस्कस नहीं की गई थी। सो इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द टेट्राहीड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ये भी इसमें VBT के आधार पर हम स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन भी नहीं दे पा रहे थे। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, all those issues which were not addressed in the VBT, they gave a food for thought to the scientist, and by that time when all this turmoil was taking place, by that time a new concept was becoming popular even in physics. Quantum mechanics उस समय बहुत अधिक अपने जोर पर थी, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रही थी और उस आधार पर अब मॉलिक्यूल्स को स्टडी किए जाने का प्रपोजल भी आने लगा था। क्या था? तो इस आधार पर अब ये डिसाइड हुआ कि जो VBT की बातें ड्रॉबैक्स हैं, उन ड्रॉबैक्स को किस प्रकार से ओवरकम किया जाए। ओवरकम करने के लिए हुंड एंड मुलिकन साहब ने लगभग 1932 में बहुत सारी रिसर्चेस कर करके अपना एक प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल में उन्होंने पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट्स कंसिडर किए, वो कंसिडर किए उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को प्रपोजल। अब जैसे VBT में हमने बात की थी कि मैग्नेटिक बिहेवियर को हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा VBT जो है डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी बहुत अच्छे से अपना जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही थी। पॉलीसेंट्रिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बहुत अधिक नहीं बता पा रही थी VBT। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, उनके बारे में भी VBT ने बहुत हमें अच्छे से स्पष्टता से नहीं समझाया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेटल्स में बॉन्डिंग होती है, उसके लिए तो VBT के पास बहुत ही पुअर जस्टिफिकेशन था। तो हुंड एंड मुलिकन ने टोटली क्वांटम मैकेनिक्स को आधार बना करके मॉलिक्यूल के बनने की क्रिया को समझाने का प्रयास किया।
So they tried to explain it on the basis of the quantum mechanical approach. So therefore, the molecular orbital theory proposed by Hund and Mulliken in 1932 assumes, what does it assume? That in molecules the atomic orbitals lose their identity and electrons and molecules are present in a new orbital which are called the molecular orbitals, which are not associated with any particular atom but belong to a molecule as a whole. The theory is based on the quantum mechanical approach where each orbital is associated with a Schrodinger wave equation. So therefore, consider atom A. Now atom A में जो orbitals हैं उनको हमने Schrodinger wave A से एक्सप्रेस किया. Similarly, atom B की जो orbitals हैं उसको हमने Schrodinger wave B से एक्सप्लेन किया. अब represent किया इनफैक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब हम बात करेंगे अब तो बात करने में ये बात आएगी जिस प्रकार दो वेव्स जब आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो ये वेव्स या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे सकती हैं और या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे सकती हैं. अगर ये वेव्स एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करती हैं तो उसको हमने एडिटिव कॉम्बिनेशन भी कहा. दिस इज एडिशन. अब जब दो वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो इसको हमने सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया. अब एडिटिव कॉम्बिनेशन और सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन दो प्रकार के जब वेव के इंटरफेरेंस पैटर्न मिले इसी को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फॉर्म में भी जाना है. अब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या फिर एटम में उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को श्रोडिंगर वेव्स के स्क्वायर के माध्यम से हमने एक्सप्लेन किया. अब अगर एडिटिव कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना साई ए यानी कि जो हमारा एटम ए का श्रोडिंगर वेव है प्लस साई बी जो कि एटम बी का श्रोडिंगर वेव है इसका हमने होल स्क्वायर किया तो ये आया साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी. जो हमारा सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन हुआ है यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को हमने जब उसमें उस रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का अध्ययन किया तो हम साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि साई ए स्क्वायर. आप स्क्वायर को यहां पर दिखाएंगे साई बी स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए बी फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज एंटी बॉन्डिंग एमओ. तो इस प्रकार बॉन्डिंग एमओ और एंटी बॉन्डिंग एमओ की संरचना हुई. अब हम डायग्रामेटिकली इसी बात को देखने का प्रयास करते हैं. डायग्राम के हिसाब से इसी बात को हम एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि जब हमें एमओ डायग्राम बनाना है तो ये हमारा रहा एटम ए. एटम ए में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स ये इसकी एटम ए की हमारी ऑर्बिटल है. दूसरा हमारा एटम बी है इसकी ऑर्बिटल है. एटम ए में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स एक डेफिनेट एनर्जी पर ये दोनों ऑर्बिटल्स पाई जा रही हैं. अगर ये एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो दोनों की एनर्जी बराबर होगी और अगर ये हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो अकॉर्डिंगली जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी ऑर्बिटल की एनर्जी स्लाइटली लोअर दिखाई जाएगी और लोअर होती है. अब इलेक्ट्रॉन एटम ए में पाए जा रहे हैं इधर इलेक्ट्रॉन एटम बी में पाए जा रहे हैं. जब ये कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं
तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जब इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो यानी कि इसकी एनर्जी एटम्स की भी तुलना में कम होगी। अब इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें कि एटम ए में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर, एटम बी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई बी स्क्वायर। अब हम अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बॉन्डिंग एमओ बन रही है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 2 साई ए साई बी अधिक है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर की तुलना में। अगर हम एंटी बॉन्डिंग एमओ को देखें, तो एटम ए में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर, एटम बी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई बी स्क्वायर, और एंटी बॉन्डिंग एमओ यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रही है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 2 साई ए साई बी कम है इसके दोनों के एडिशन के कंपैरिजन में। यानी कि जब हम इसके डायग्राम को बनाएंगे तो लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम। जो बॉन्डिंग एमओ रिप्रेजेंट होंगी क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी अधिक है, यानी कि इंटर्न एनर्जी कम होगी तभी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है, तो उसकी एनर्जी कम दिखाई जाएगी। यानी कि बीएमओ जो है, बीएमओ ये लोअर एनर्जी पर होंगी कंपेयर टू एबीएमओ यानी कि एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ। मैं इसको जरा ठीक से आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। दिस इज एबीएमओ एंड दिस इज बीएमओ। ऑलराइट, तो अब ये बात क्या समझ में आई कि जब हम मॉलिक्यूल बनाएंगे, जब हम मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाएंगे एमओटी के आधार पर, तो हम किस प्रकार डायग्राम ड्रॉ करेंगे? हम एटम्स की ऑर्बिटल्स को एक एनर्जी के लेवल पर ड्रॉ करेंगे। जो बॉन्डिंग एमओ बनेगी उसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एज पर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनर्जी कम है, प्रोबेबिलिटी अधिक है, तो एटम्स से भी कम लेवल पर हम बॉन्डिंग एमओ को रिप्रेजेंट करेंगे। एटम से अधिक हायर एनर्जी के लेवल पर हम एंटी बॉन्डिंग एमओस को रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार हम एमओडी के ड्राइंग्स बनाएंगे। और बच्चों एग्जाम में भी आपके यहाँ डायग्राम भी बनाने को आते हैं, इसलिए आप एक बार इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ करके ड्रॉ करने का कोशिश कर लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का हम देखते हैं कि जो बॉन्डिंग एमओस बन रही हैं और जो एंटी बॉन्डिंग एमओस बन रही हैं इनमें मुख्य अंतर क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये पूछा जाता है और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये डिफरेंसेस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की और बात करते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनते हैं फॉर्म्ड बाय एडिशनल ओवरलैप ऑफ एओज, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, यानी कि उन श्रोडिंगर वेव्स में, तो हमें जो ऑर्बिटल्स मिलती हैं हम उनको बॉन्डिंग एमओस कहते हैं। फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण जो हमें रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स मिलती हैं हम उनको क्या कहते हैं? एबीएमओस, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। BMOs have lower energy than the combining atomic orbitals. This we saw, हमने इसको अभी भी देखा था कि जो BMOs हैं इनकी एनर्जी कम है, और हमने श्रोडिंगर वेव के माध्यम से भी देखा था
कि जो BMOs बनती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, यानी कि उनकी एनर्जी कम है। सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग में इट हैज हायर एनर्जी देन दी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसीलिए आपने जब डायग्राम देखा था तो हमने ABMOs को एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ऊपर रिप्रेजेंट किया था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन द ओवरलैप रीजन इन BMOs, and electron density is particularly nil between the two nuclei or the overlap region, and hence larger repulsion is felt by the nuclei। इसलिए इनकी एनर्जी रिपल्शन के कारण अधिक बढ़ जाती है। अब रिप्रेजेंटेशन यदि देखा जाए तो जो BMOs हैं उसमें जो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं उनको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा के फॉर्म में, और जो पाई ऑर्बिटल्स हैं उनको हम नॉर्मल यानी कि जो साइडवेज ओवरलैप से बन रहे हैं पाई ऑर्बिटल्स उनको हम पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिग्मा एस्ट्रिक लगा देते हैं फॉर एंटी बॉन्डिंग ऑफ अ सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा MO, और हम पाई के ऊपर एक एस्ट्रिक लगा देते हैं जब हम पाई की एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफरेंसेस एज आई सेड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और एग्जाम में भी ये डिफरेंसेस अक्सर आते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से इन डिफरेंसेस को एक बार अपनी मेमोरी में ले आइएगा। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप यानी कि एडिटिव ओवरलैप के कारण BMOs, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के कारण ABMOs। BMOs की एनर्जी कम होती है, ABMOs की एनर्जी अधिक होती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि देखा जाए तो BMOs में एटम्स के बीच के रीजन में ओवरलैप में इलेक्ट्रॉन्स का पेयर पाया जाता है। ABMOs में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग निल होती है, इसलिए रिपल्शन अधिक होता है और यही कारण है कि एनर्जी बढ़ जाती है। एंड देन फाइनली द रिप्रेजेंटेशन। अब हम मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स MOT के पोस्टुलेट्स को भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। MOTs के पोस्टुलेट्स क्या हैं? मेनली in a molecule electrons are present in new orbitals called the molecular orbitals। Now वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम्स थे वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही ओवरलैप करते थे। यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अगर देखा जाए, अगर मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जस्ट इमेजिन करिए कि अगर हमें MOs बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, हम एटम A लेते हैं, एटम B लेते हैं, एटम A के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के एक बॉक्स में डाल देते हैं, एटम B के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के उसी बॉक्स में डाल देते हैं, अच्छे से उस बॉक्स को हिलाते हैं और उसके बाद इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऑल ओवर अगेन अरेंज करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो एक बिल्कुल ही नई संरचना बनकर के आती है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ऑफ कोर्स हेटेरोन्यूक्लियर में थोड़ा सा डिफरेंस एनर्जी में हो जाता है, और ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। तो जब दो ऑर्बिटल्स को कंबाइन करना है तो डेफिनेटली उसका शेप, उसकी सिमेट्री और उसकी एनर्जी को कंपेरेबल तो होना पड़ेगा, लगभग आसपास होना पड़ेगा, तभी ये कॉम्बिनेशन संभव होते हैं। The number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals undergoing combination, और इसी को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का कॉन्सेप्ट इसको हम कहते हैं। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होती हैं। Two atomic orbitals can combine to form two molecular orbitals. Out of these two molecular orbitals, one has a lower energy, which is the BMO, and the other has a higher energy, and that is ABMO. The molecular orbitals with lower energy is called the bonding molecular orbital, जिसको हमने BMO कहा, and the other with a higher energy is called the anti-bonding molecular orbital. The shapes of the molecular orbital depend upon the shape of the combining atomic orbitals. All right. So अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं कि हमें फिलिंग अप ऑफ MOs कैसे करनी है। तो MOs के फिलिंग अप करने के लिए नॉर्मल सीक्वेंस यदि देखें, फॉलोइंग द सेम सेट ऑफ रूल्स, सेम सेट ऑफ लॉज लाइक द हुन्स रूल, द पॉलीज एक्सक्लूजन, ऑफ-बॉस प्रिंसिपल। तो हम ऑफ-बॉस प्रिंसिपल जो कि एनर्जी पर आधारित होता है, जिसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को
भरते थे, जब हम एटम्स को बनाते थे, एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, तो उसी एनर्जी सीक्वेंस के आधार पर एमओज को भी फिलअप किया जाता है। जिन एमओ की एनर्जी कम उनको पहले भरा जाएगा, जिन एमओ की एनर्जी ज़्यादा उनको बाद में भरा जाएगा। तो मैं पहले सेकंड वाला ले लेती हूं, मॉलिक्यूल्स हैविंग 15 इलेक्ट्रॉन ऑनवर्ड्स। मैं पहले इसको टेकअप करूंगी और मॉलिक्यूल्स हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन ऑन और लेसर वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि उसमें एक एनॉमली है, इसमें एक डिफरेंस है। सो सिग्मा 1s ऑब्वियसली पहली एनर्जी लेवल सबसे पहले भरी जाएगी, सिग्मा स्टार 1s यानी कि उसकी एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब सिग्मा ऑर्बिटल्स की एनर्जी पाई से हमेशा कम होती है, तो जब हम पी पर आते हैं तो सिग्मा 2pz फॉलोड बाय पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py फॉलोड बाय पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड फॉलोड बाय सिग्मा स्टार 2pz। 15 इलेक्ट्रॉन और उससे अधिक में तो ये सीक्वेंस फॉलो होगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन्स और लेसर, वहां पर जो एक अनोमलस कैरेक्टर आता है कि सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py के बाद में भरा जाता है। कारण क्या है कि जब लेसर न्यूक्लियर चार्ज होता है तो सिग्मा 2pz डीस्टेबलाइज हो जाती है, और जब कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी एमओ डीस्टेबलाइज होती है तो उसकी एनर्जी हमेशा बढ़ती है। ठीक, इसलिए ये बाद में फिल किया जाता है। इस चीज को बच्चों आप लोग बहुत अच्छी तरह से, एक तरह से ध्यान में कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपने अंदर बैठा लीजिएगा। फिर भी एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जो आपके मॉलिक्यूल्स, जब हम एटम ए और एटम बी के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, तो उसका जो टोटल आ रहा है, अगर वो 14 या 14 से कम आ रहा है, 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो जो सीक्वेंस फॉलो होगा वो होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। पहले भरा जाएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, उसके बाद में भरा जाएगा सिग्मा 2pz और बाकी का सब नॉर्मल रहेगा, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड फाइनली सिग्मा स्टार 2pz। ओके, और मॉलिक्यूल्स हैविंग 15 इलेक्ट्रॉन एंड अबव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है, उसमें नॉर्मल वे में जैसे हम भरते थे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz followed by pi 2px equals to pi 2py followed by pi star 2px equals to pi star 2py and sigma star 2pz। इस प्रकार अब इसी चीज को हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। इसका हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो डायग्राम बनाने के लिए देखिए 14 एंड लेसर इलेक्ट्रॉन अप टू नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन का डायग्राम है, देखिए मैंने के स्टार यानी कि पहले एनर्जी लेवल को छोड़ दिया है। तो अब आप यहां पर देखिए कि पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py और उसके बाद जो है सिग्मा 2pz को फिल किया गया है, जबकि 15 इलेक्ट्रॉन ऑनवर्ड्स यानी कि जिसमें हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन वगैरह लेते हैं, ये नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करता है और नॉर्मल सीक्वेंस में सिग्मा 2pz पहले भरा जाता है, पाई 2px, पाई 2py उसके बाद में फिल किया जाता है। Thank you so much for attending my class and I hope you had a good learning.